رٲژ ہُنٛد عالم سوریو صبحُک عالم تھنہٕ پیوٚو رٲژ ہُنٛد عالم سوریو صبحُک عالم تھنہٕ پیوٚو رٮ۪ہہ لٔج نوٗر مشالن گاہ پیو سنگر مالن. صبح بخیر, السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ اینڈ اے ویری وارم ویلکم. پروگرام کے ایک اور تازہ شمارے میں آپ سبھی دوستوں کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں. امید یہی کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے, بصحت و سلامت ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے. آج بھی یہ انفوٹینمنٹ کا پیکیج آپ تک 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پہنچائیں گے, جس میں آپ کی ملاقات دو بہت ہی اہم مہمانوں سے کرائیں گے, اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے اور کچھ ضروری اپڈیٹس پہنچائیں گے. ناظرین, کہتے ہیں کہ منزلوں کو طے کرنا تبھی ممکن ہے ایک انسان کے لیے جب وہ صحیح ڈائریکشن, صحیح سمت کی اور گامزن ہو. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں, بہت ایفرٹس پٹ ان کرتے ہیں, لیکن ڈائریکشن صحیح نہیں ہوتی تو وہ سارے ایفرٹس جو ہے رائے گان چلے جاتے ہیں. وہی کچھ لوگ اسمارٹ ورک کرتے ہیں, صحیح ڈائریکشن کو پکڑتے ہیں, ان کی محنت رنگ لاتی ہے, ان کو مثبت نتائج حاصل ہوتے ہیں. اب اس ڈائریکشن کا انتخاب کیسے کریں, یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. اس کے لیے ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں خود میں جھانکنا ہوگا, خود میں چھپی صلاحیتوں کو, قوتوں کو, ٹیلنٹس, ہنر کو پہچاننا ہوگا کہ ہماری دلچسپی کس طرف ہے, ہم میں کس طرح کی انکلینیشن ہے, ہم میں کس طرح کا ٹیمپرمنٹ ہے, کس طرح کا ایپٹیٹیوڈ ہے, تبھی جا کے کسی راہ کا انتخاب کرنا ہوگا. اور اس کے لیے ہم اگر یہ خود سے نہ ہم طے کر پائیں تو کسی اپنے والدین سے ہم صلاح لے سکتے ہیں, کسی ایکسپرٹ کے پاس جا سکتے ہیں, کسی ماہر کے پاس جا سکتے ہیں, جو ہمیں اس میں انتخاب کرنے میں آسانی ہو جائے گی ہمیں. اور جب صحیح ڈائریکشن ہمیں ملتی ہے تب انسان جو ہے کامیابی کی مراحل کو طے کرتا جاتا ہے, کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے اور بہت ساری منزلوں کو حاصل کر لیتا ہے. ہم دعا یہی کریں گے کہ آپ بھی کامیابی کی منزلوں کا طے کریں اور آج کا دن جو ہے آپ کے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں کی نوید ثابت ہو. آج پروگرام میں ایک نئی سوچ, نئی آئیڈیاز کے بارے میں ہم بات کریں گے, جن لوگوں نے اپنے لیے ایک الگ راہ کا انتخاب کیا اور اسی راہ پہ چلتے گئے. انہوں نے کیا کچھ حاصل کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن سب سے پہلے پروگرام میں کچھ ضروری اپڈیٹس ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. چلتے ہیں اپنی ساتھی میزبان کی طرف. آج پروگرام میں میں رہوں گا آپ کے ساتھ, قاضی محمد عمار میرا ساتھ نبھائیں گی پروگرام میں ناظمہ. بہت شکریہ. صبح بخیر, السلام علیکم. وسہ ونج استقبال تہ سارے معزز ناظرین ہوں تہندس پسندیدہ بریک فاسٹ شوس مز یتھ ناو گڈ مارننگ JNK. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک اور خوبصورت سی صبح ہمیں نصیب ہوئی اور ایک مرتبہ پھر سے آپ کی میزبانی کا موقع ہمیں فراہم ہوا. یہ اللہ کا کرم ہے, آپ کی نیک دعائیں ہیں کہ ہمارا دن بھی صحیح سے گزر رہا ہے. اور یتھ کن جان الیاس صاحب چھنس فرماوان کہ آج کا دن بھی بڑے اچھے سے گزرا, سر سے پا تک بدن سلامت ہے. بالکل, تو یہ سوری تہد دعا اس تام واتان, آپ فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں نوازتے ہیں اور اوپر والے سے ہم یہی دعا کریں گے کہ آج کا دن بھی خوبصورت نکلے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت و سلامت رکھے. اور اسی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں آج کے شو کا. آج آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے بلکہ سیدھے آپ کو اپڈیٹس ہم آگاہ کریں گے اپڈیٹ سے. آج اگر ٹریفک کی بات کی جائے تو آج جو ہے موسم سازگار اور سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں ٹریفک کو یک طرفہ چلنے کی اجازت ہوگی, یعنی کہ آج گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی. کسی بھی گاڑی کو مخالف سمت میں چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. درخواست وہی کہ SOPs کا خاص خیال رکھیے گا, ٹریفک رولز کا خاص خیال رکھیے گا اور رختے سفر ماننے سے قبل ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کیجیے گا. موسم کی بات کی جائے, موسم کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ موسم تو خشک رہے گا لیکن مطلع ابر آلود رہنے کے امکان ہے. سری نگر میں اس ٹائم پہ 5 ڈگری سیلسیس بنا ہوا ہے اور آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس, وہی کم سے کم 1 ڈگری سیلسیس. جموں میں 30 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 13 ڈگری سیلسیس. وہی لیہ میں آج دن کا 11 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم -7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ناظمہ ہم تک صبح صبح یہ اپڈیٹس پہنچانے کے لیے. ناظرین, ایک اور اناؤنسمنٹ کرتے چلے ہم. آج ہیلو DD پروگرام جو لائیو فون ان پروگرام ہم نشر کرتے ہیں 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک وہ پروگرام آج نشر ہوگا. اور آج پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہوں گے ڈاکٹر اعجاز احمد حقاق صاحب, جو کہ جوائنٹ سیکرٹری بورڈ آف اسکول ایجوکیشن ہے. کیونکہ آج ایجوکیشن کے حوالے سے اور ایگزامینیشنز کے حوالے سے بہت ساری کوائریز اور ڈاؤٹس ہیں لوگوں کو, تو آپ اپنی ڈاؤٹس کو کلیئر کر سکتے ہیں اور ان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں.
5 बजे से लेकर 6 बजे तक ये शो हम आप तक पहुंचाएंगे। हेलो डीडी। खैर आज किन मेहमानों को हमने प्रोग्राम में दावत दी है, मुलाकात कराएं आपसे कि पहले आप कोई नगमा सुनेंगे। जी आप पहले कोई नगमा ही सुनेंगे, आपको इंतज़ार होता है कि मौसीकी हंद कम नगमु का इंतखाब कम बतो का इंतखाब कोरमुत। आज बोजो राशिदा अख्तर ने आवाज़ मज़ा खूबसूरत कशुर बत, तम पत करो पन्न मेहमान से मुलाकात। पाक में लिपा कस
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JN के, आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट शो। राशिदा अख्तर की आवाज़ में आप ये खूबसूरत कश्मीरी नगमा सुन रहे थे और अब वक्त आ चुका है कि हम आपकी मुलाकात आज के हमारे मेहमानों से कराएंगे। नाज़रीन, जब ये मरहला आता है कि इंसान को इंतखाब करना पड़ता है कि अब कौन सा करियर ऑप्शन हम चुनें, किस राह पे गामजन हों, तो वहाँ पे पहले कुछ प्रेफर्ड और एश्योर्ड करियर ऑप्शंस होते थे जिनको हम सेफ़ करियर ऑप्शंस के तौर पे आइडेंटिफाई करते थे। चाहे हमारा टेम्परामेंट हो वैसा, चाहे हम में वैसी सलाहियत हो, लेकिन हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर पेरेंट्स, आवर सोसाइटी, हम उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं फील्ड्स का इंतखाब करते थे। लेकिन अब ज़रा सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है। अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें हम आगे बढ़ सकते हैं और उन्हीं फील्ड्स को हमारे यहाँ के नौजवानों ने एक्सप्लोर किया है और बहुत कामयाब हुए हैं। वही राह उनके लिए राह कामयाबी साबित हुई है। और ऐसे ही एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स और नए स्टार्टअप्स का जो रुझान है बढ़ गया है। अब लोग जो है खुद अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, खुद कफ़ील बनना चाहते हैं, जॉब सीकर्स के बजाय जॉब प्रोवाइडर्स बनना चाहते हैं। और ऐसी कोशिशों को, हमारी जो एक कोशिश रहती है कि ऐसी काविशों को हम आइडेंटिफाई करें और उनको एक्नॉलेज करें और आप तक ऐसी कोशिशों को पहुंचाएं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि आज लोग किन फील्ड्स का इंतखाब कर रहे हैं। आप में भी अगर वो चाह है तो आप भी उसको जो है अमल में ला सकते हैं। जो हम आज आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंट होने की बात करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होने की बात करते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमारे आज के मेहमान जो है हतमी शक्ल दे के अमल में ला रहे हैं। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं दो बहुत ही मोतबर मेहमान। हमारी दाईं जानिब बैठे हैं मंजूर अहमद इलाही साहब, जो कि पेंसिल यूनिट होल्डर हैं, पेंसिल मैन्युफैक्चर करते हैं और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में उनका जिक्र किया, उनको अप्रिशिएट और एक्नॉलेज किया। और हमारी बाईं जानिब तशरीफ़ रखती हैं हरीबा चौधरी साहिबा, जो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। सारी गुड मंजूर साहब, तुहद इस्तकबाल, तो दुश्मनी पचन इस्तकबाल प्रोग्रामस मज अम ब्रोह कि यमो तुहदिस अत यूनिटस कुन यह कित करो तुम कायम, थोड़ा बहुत दी तो पन्ने ज़ात के हवाले मुख्तसर तारुफ कत इलाकस सत तुहद ताल्लुक, तो कित आव तुह यह कॉन्सेप्ट यूनिट एस्टैब्लिश कर? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं आज इस स्टूडियो में पहुंचा। कभी आज तक मैंने ज़िंदगी में मतलब सोचा ही नहीं। ये आपकी मेहनत है, आपकी लगन। अब ये है कि एक्चुअली 92 में मैट्रिक पास की। फादर हमारा कर रहा था, जो आपने देखा होगा फॉरेस्ट डिपो, जो फॉरेस्ट सेल कर रहे थे, वो टिम्बर वहाँ पे वो लोडिंग कर रहा था, मतलब मजदूरी कर रहा था। तो वो करते करते उस टाइम मतलब पूरा उसमें 100-150 रुपये दिहाड़ी मिल के, फिर हमारा परिवार था, सिस्टर था, ब्रदर था जी, मदर थी, तो उसी से चलते थे रोजगार। फिर मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ करूं। फिर चलते चलते मैं भी निकल गया काम में। मैं निकल गया, ये जो उस टाइम ये लोग मतलब कुछ ठेकेदार थे, वो लकड़ काट रहे थे, जैसे पेड़, वो मतलब विल्लो, पॉपुलर, किकर, तो उसी काम में भी चला गया। वो सीखते सीखते मैंने देखा, तो एक टाइम मुझे पता चला ये जो पॉपुलर है, ये मतलब छोटे छोटे लाग बना के ये जा रहा था जम्मू पेंसिल फैक्ट्री में। तो फिर मैंने भी ये सोचा था मैं ये करूं, पर टाइम लगा इसमें बहुत। फिर यही चलते चलते फादर का जो काम था उसमें मतलब वो बंद हो गया। उसमें कुछ ऐसा नहीं, वहाँ मतलब 10 दिन के बाद दिहाड़ी मिलती थी, कई 15 दिन। और मेरा ब्रदर था, वो एक आरा मशीन में काम करने गया, वो पे वहाँ पे वो फ्रूट बॉक्सेस बनाते थे। तो फिर मेरे मन में एक दिन आया, क्यों ना हम 3 बाप बेटे, अब समझो हम लकड़ के ही रिलेटेड है, क्यों ना हम अब छोटा अपना एक आरा लगाए। तब अपने पास 1 कनाल जगह थी, तो वो जगह हमने बेच दी। उसमें उस टाइम 60-70 हज़ार रुपये मिला, तो मैंने वो आरा लेके कर दिया खड़ा। तो फिर हम तीनों बाप बेटे इसमें लगे। फिर हमने फ्रूट बॉक्सेस बनाना शुरू किया। प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में छोटे छोटे बैटन लगते थे, वो बनाना शुरू किया। वो चलते चलते हमारा चल गया 2008 तक। तो फिर एक बार मैं जम्मू चला गया। जम्मू में चला गया, मैंने यही सोचा कि मैं भी ये लाग सप्लाई करूं जी। तो मैं जब वहाँ गया, वहाँ मैंने देखा लाग, वहाँ उनसे मैंने बात की, और मेरे एक प्रोडक्ट पे मैंने देखा वो लाग को क्या कर रहे थे वहाँ पे। वो ऐसे छोटे छोटे ईंट जैसा बना रहा है इसका। मेरे मन में आया कि मेरा बैंड शो है घर में, तो ये तो उसी रिलेटेड काम है। फिर मैंने इनके साथ बात किया,
आप जो ये ईंटें जैसे ब्लॉक बनाते हैं, क्यों ना मैं बना के दे दूंगा वहां पे। ठीक। तो इन्हें बोला ठीक है आप दो बना के। मुझे 2-3 दिन लगा तो मैं वापस आया। फिर मैंने घर में बोला तो उस टाइम एक मशीन और लगी थी इसमें प्लेनर, इसको प्लेन करके बनना। बदकिस्मती वो पैसा नहीं था, जितना पास था वो उसका मैंने बैंड सुलाया था। तो मुझे याद है मैंने एक रिलेटिव के पास गया, मैंने उसको बोला ऐसी बात है, तो उसने उस टाइम वो 75,000 की आई वो मशीन, मैंने इससे ले लिया उधार जी। वो उधार ले लिया, मैंने लगाई ये मशीन। तो अब लगाई तो अब लाइट की प्रॉब्लम थी। लाइट सुबह मिलता था 8 बजे, फिर 1 बजे चली जाती, फिर रात को सीधा 10 बजे, मतलब 2-4 घंटे लाइट इसमें मिलते, रात में पूरा मिलती थी सुबह 5 बजे तक। ये शुक्र है ऊपर वाले का, अपना फादर आज भी मेहनत करता है। अगर वो एक दिन अगर वो घर में बैठ जाएगा, मतलब उस टाइम उसका ब्लड प्रेशर मुझे लगता है 150 से ऊपर चला जाएगा। वही अभी तक नहीं वो बैठ सकता अभी भी। और ब्रदर के साथ साथ मैंने और एक फ्रेंड मेरा है जी, तो उसका नाम है मोहम्मद अल्ताफ, उसका लड़का, और एक रिलेटिव लाया। मैं सोचा अपना ग्रुप बना के इनको अगर हम 1 घंटा ज्यादा भी लेंगे, मतलब कभी रात भी रहेंगे, तो ये अपने बंदे घर के बंदे हैं। अगर हम बाहर के लाएंगे तो वो माने, ऐसा थोड़ी मानेगा मैं रात को करूंगा दिन में करूं। फिर हमने क्या किया, फिर रात को ये लोग, ये चारों लोग रात मतलब शाम को 10 बजे चालू करते थे, सुबह रात की मतलब सुबह 5 बजे तक। अच्छा। चाहे बर्फ गिरा हुआ बाहर, बारिश गिरा हुआ, मौसमी हालात हो, वो मतलब बिजली का हम उस टाइम वो फायदा लेते थे, क्योंकि जनरेटर आता था उस टाइम 2-3 लाख का, तो वो है नहीं अपने पास। तो यही करते करते हमने मतलब पहुंच गए इस स्टेज पे। कंपनी को आगे लगा नहीं जी, मेहनत कर रहे हैं, इन्हें दिया हमें बना के जो हम चाहते हैं। सही। और ये सफर फिर आगे बढ़ता गया। इंशाल्लाह इस सफर के बारे में और बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ और एक मेहमान हरीबा जी भी जुड़ी हैं। जी हरीबा जी, आप बताएं अपने बारे में कुछ। वालेकुम सलाम जी। मैं हरीबा चौधरी एंड आई एम फ्रॉम रैनावारी। मैं रैनावारी से बिलोंग करती हूँ, और बाय प्रोफेशन अभी मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट जी। तो ये सफ़र मेरा ऐसे शुरू हुआ कि जब मैं 10th क्लास में थी, तो आई वाज लाइक कि तब स्टडीज़ का प्रोसीजर चल रहा था, लेकिन मुझे जब भी मैं किसी कलरफुल चीज़ को देखती थी, किसी को सजा सवरा देखती थी, तो मुझे वो अट्रैक्शन फील होती थी उस चीज़ से कि मैं इस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट, ये कलर इस पे सूट करेगा, ये कलर उस पे सूट करेगा। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था। बट स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और आगे चल के अगर मुझे अपना बिजनेस करना था तो मुझे अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी थी। तो दैट्स वाई मैंने पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एज BCom, ताकि मैं बिजनेस का भी थोड़ा इनपुट ले सकूं। उसके बाद आई वेंट फॉर माई फर्दर स्टडीज, जो कि एज कॉस्मेटोलॉजिस्ट मैंने लैक्मे एकेडमी से करा हुआ है। तो उसके लिए मैं बाहर चली गई, और 3 साल मैंने डिवीजन में ये किया है। और क्यों किया? क्योंकि वहाँ की गर्मी जो है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, तो मैं विंटर्स में वहाँ चली जाती थी और समर्स में वापस। तो ऐसे मैंने 3 साल में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर, पूरी स्टडीज इसमें ग्रेजुएशन कर ली कॉस्मेटोलॉजिस्ट में। तो ऐसे मेरा सफ़र था जी। बिल्कुल, और इस सफ़र के बारे में और जानेंगे और बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, मैंने पहले ही जिक्र किया कि जब कोई इंसान कोशिश करता है, फिर वो कोशिश एक्नॉलेज हो, तो उसको बहुत हौसला अफजाई मिलती है, उसके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर साबित हो जाता है। तो हम एक क्लिपिंग के लिए रुकेंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे मंजूर अहमद इलाही साहब हैं, उनके बारे में कुछ तासुरात जाहिर कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये क्लिपिंग आप देखिए, उसके बाद हमारे मेहमानों से गुफ्तगू जो है जारी रहेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज कश्मीर का पुलवामा पूरे देश को पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज देश भर में बच्चे अपना होमवर्क करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो कहीं न कहीं इसके पीछे पुलवामा के लोगों की कड़ी मेहनत भी है। कश्मीर घाटी पूरे देश की करीब करीब 90% पेंसिल स्लेट लकड़ी की पट्टी की मांग को पूरा करती है, और उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी पुलवामा की है। एक समय में हम लोग विदेशों से पेंसिल के लिए लकड़ी मंगाते थे, लेकिन अब हमारा पुलवामा इस क्षेत्र से देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। वास्तव में पुलवामा के ये पेंसिल स्लेट्स के बीच के गैप्स को कम कर रहे हैं। घाटी की चिनार की लकड़ी में
हाई मॉइस्चर कंटेंट और सॉफ्टनेस होती है, जो पेंसिल के निर्माण के लिए उसे सबसे सूटेबल बनाती है। पुलवामा में उक्खू को पेंसिल विलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पेंसिल स्लेट निर्माण की कई इकाइयां हैं जो रोजगार उपलब्ध करा रही है, और इनमें काफी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। साथियों, पुलवामा की अपनी यह पहचान तब स्थापित हुई है जब यहाँ के लोगों ने कुछ नया करने की ठानी, काम को लेकर रिस्क उठाया और खुद को उसके प्रति समर्पित कर दिया। ऐसे ही कर्मठ लोगों में से एक हैं मंजूर अहमद अलाई। पहले मंजूर भाई लकड़ी काटने वाले एक सामान्य मजदूर थे। मंजूर भाई कुछ नया करना चाहते थे ताकि उनके आने वाली पीढ़ियां गरीबी में न जिए। उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और एप्पल वुडन बॉक्स यानी सेब रखने वाले लकड़ी के बक्से बनाने की यूनिट शुरू की। वे अपने छोटे से बिजनेस में जुटे हुए थे। तभी मंजूर भाई को कहीं से पता चला कि पेंसिल निर्माण में पॉपुलर वुड यानी चिनार की लकड़ी का उपयोग शुरू किया गया है। ये जानकारी मिलने के बाद मंजूर भाई ने अपनी उद्यमिता का परिचय देते हुए कुछ फेमस पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को पॉपुलर वुडन बॉक्स की आपूर्ति शुरू की। मंजूर जी को ये बहुत फायदेमंद लगा और उनकी आमदनी भी अच्छी खासी बढ़ने लगी। समय के साथ उन्होंने पेंसिल स्लेट मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी ले ली और उसके बाद उन्होंने देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को पेंसिल स्लेट की सप्लाई शुरू कर दी। आज मंजूर भाई के इस बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों में है और वे लगभग 200 लोगों को आजीविका भी दे रहे हैं। आज मन की बात के जरिए समस्त देशवासियों की ओर से मैं मंजूर भाई समेत पुलवामा के मेहनतकश भाई बहनों को और उनके परिवार वालों को उनकी प्रशंसा करता हूँ। आप सब देश के यंग माइंड्स को शिक्षित करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हम बात कर रहे हैं हरीबा चौधरी साहिबा से, जो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और मंजूर अहमद इलाही साहब जिनका पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मंजूर साहब, तो ऐसी वुछान कि सोशल मीडिया पे वुछ तमाम यम ते न्यूज़ चैनल तत ताव तुहद जिक्र, तह मिले एप्रिसिएशन। आज क्युथ बासान, मतलब युस तह तम दो यम एफर्ट करियो, वजुम वरुद करू, अकिस हेतु पोंस बेस हेतु पोंस, मगर तह अख सो चाह, तह मज सो जज्ब कि बह कर पनुन कह स्टार्ट। आज छा इत्मीनान बासान अथ फैसलस पे? ना इत्मीनान इत्मीनान असल पे। बेसिकली कोर फैमिली कोर मे बड़ सपोर्ट अथ मतलब बहुत वनकस वन मतलब कह बिजनेस कर, चाहे पढ़ाई कर, फैमिली सपोर्ट वराय हेक कर। सही फैमिली कोर मे सपोर्ट, मतलब वारिया सपोर्ट, दोस्तों कोर सपोर्ट अत मज। बह वोतुस यथ स्टेजस पे, मतलब तम वराय चलहा ना क्या तम फैमिली में तिमो कर फैमिली कर मेहनत, ब्रदर फादर तम किन वोतुस बह यथ स्टेज। मतलब कुन सात मे यूत आसान, मतलब वन मे कमजोरी, बह सह बाकिन फैमिली वाले वन क्या, मतलब मे जी रेतस रोपियस 10,000, मे पे योर 15,000 मशीन 5,000 बह पथे ग, मगर मैं बहुत ब्रो ब्रो करान कोशिश पकनस, पत किन सपोर्ट रटित। तम किन वो मतलब बह वारिया वनकस असल इत्मीनान। वन मतलब क्या थोड़ा थोड़ा इशू गवर्नमेंट मे बासान इंशाल्लाह तिमन इशून मुतलिक करो इस कत, मगर इस फैमिली सपोर्ट कत करो नाज़िमा, ये तो हर फील्ड में मुझे लगता है बहुत जरूरी है। फैमिली सपोर्ट ना हो तो हरीबा जी को कितना फैमिली सपोर्ट मिला? यही मैं पूछना चाहूंगी इनसे कि फैमिली सपोर्ट, क्योंकि एक अलग प्रोफेशन है, कितना एक्सेप्ट करती है हमारी आज की सोसाइटी इस प्रोफेशन को? पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक्सेप्ट ना करने वाली बात इसमें कहाँ से आती है? सही। तो फैमिली सपोर्ट जहां हम बात करें तो बहुत ज्यादा रहा है वो, स्पेशली माय मदर, माय फादर एंड माय एल्डर एंड यंगर सिस्टर्स। इन्होंने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। कभी मुझे ये नहीं बोला कि मतलब डोंट डू दिस, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। इवन जब मैं कहीं पे लाइक आई हैव टू गो फॉर द मेकअप, तो माय फादर यूज्ड टू पिक एंड ड्रॉप मी। ओह ग्रेट। तो ऐसे सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा है अपनी फैमिली से, और मुझे नहीं लगता कि इस प्रोफेशन में हमें कुछ नेगेटिव थॉट्स रखने चाहिए।
किसी भी प्रोफेशन में हमें कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं रखनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, प्रोफेशन को जेंडर स्पेसिफिक ना बनाएं no, कि ये not प्रोफेशन लड़कियों का है, इसमें नहीं जा सकती। कॉस्मेटोलॉजी ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो लड़के भी कर सकते हैं एंड गर्ल्स आर कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए, और इसमें वी हैव अ वास्ट फील्ड इन दिस। बिल्कुल, इस फील्ड की अगर हम बात करें, हमें जरा तफसील से बताइएगा, इसमें क्या कुछ पढ़ाई होती है, कहाँ कहाँ आपने पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा है? बेसिकली इसमें मैंने प्रॉपर एकेडमी से पढ़ा है, दैट इज़ द लैक्मे एकेडमी। और फिर अगर हम बात करें कॉस्मेटोलॉजी की, तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डर्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी ये है कि आप कैसे एक कोई भी अगर ब्यूटी है उसको कैसे निखारते हैं। ठीक। तो डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्योर करते हैं उस चीज़ का, हम भी कर सकते हैं एज कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हम भी उस चीज़ को क्योर से, बट कुछ हद तक। ठीक। तो हम अगर कोई ब्यूटी है उसको कैसे एनहांस करते हैं, अगर आप नेल आर्ट की बात करें, अगर आप हेयर की बात करें, आप मेकअप की बात करें, आप एक ब्यूटिशियन की बात करें, तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को पता होनी चाहिए। और हमारा जो सिलेबस होता है इट इज लाइक इन अराउंड दिस। ओके। और जैसे कि आपने कहा कि संवारने की बात है, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि एक स्टीरियोटाइप बनाया गया है, कुछ सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी रखे गए हैं, जिनकी वजह से जिनको मैच करते करते लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमारे ऐसे फीचर्स होने चाहिए, हमारा ऐसा लुक होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने ये एक चीज़ डेवलप कर दी है, उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो भी आपके फीचर्स है, अगर प्रॉपर ग्रूमिंग हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, तो विद गिवन सेट ऑफ फीचर्स आप अच्छे लग सकते हैं, वेल ग्रूम्ड लग सकते हैं। मंजू साहब, ये कारखाना अत मुतलिक वन तो, ये कार करो तो शुरू, तथ मुतलिक वोनू तो थोड़ा बहुत अत कत्या वनकन कारीगर काम करान, तो कित कन ये पेंसिल बनान? बेसिकली 2007 मज त्रो लकुट कारखाना, वोन मे तुम पन्नी रिश्तेदारी दोस्त वगैरह, मतलब मे दोप कस लग गंट चेर रात लगस तो अथी 2-3 नफर। पत गो मे 2010 मज बढ़ो थोड़ा लग 10-15 नफर, असल गो पे 2012 एंडिंग। कंपनी बेसिकली नबर फॉरेन मुल्कन मज ग चाइना गसान पेवान स्लेट अन चाइना पे या श्रीलंका पे, जर्मनी पे, तो यमो वो टेक्नोलॉजी तम अमिच मशीन वशीन, तो यमो अन मशीन यमो लगे पन्नी फैक्ट्री मज। बेसिकली रबस आसान कर, मतलब रब योतान अल्लाह ताला तोताम पे फैमिली हुंद सपोर्ट मस्त। यमो लगो ये पन्निस प्लांटस मज जमे ये मशीन, यमन आव न हिसाब किताब कह, तो यमो दोप मे कि त्रो तूर श्रीनगर वुच मे वुच, तो मतलब बेसिकली अल्लाह ताला कर, यह गई यमो युथ कामयाब सेट, तो यमो कर कोशिश बढ़ाव सा बे अत बढ़ावन सत मे पान से हैकत कहें, मतलब मे मशीनरी अत मशीनरी शाड़ लुक लग थोमुत मतलब लोरन पे शाड़ बनत गो सो त्रुपालस तल कर महदूद वसाइल, मतलब बेसिकली सोई प्रॉब्लम। यह बढ़े अमे आय यमन गो वारिया असल, बे आय यमन पे सोन मेहनत मेनिस फादर सं खा यम सात कुछ सात मोन फादर पाने वनकस तह लकर तुलान पाने, मतलब पाने या ब्रदर वनकस तरान, यमन आय बड़ पसंद, अथ सी बढ़ो तो वनकस मतलब 100 लेबर तो लगान, 100-150 कुछ सात लगान। तो वो सर्दी ये वनकस सर्दी मज थोड़ा लाइट बिजली हूँ इशू विशू, तो वो वनकस थोड़ा कम अमे हिसाब पकान, मगर असल फ्यूचर तसल क्या पेंसिल जिंदगी हज जरूरियात, गोडनुक आइटम ये बड़े नरकर कलम बचन दिवान, मगर पेंसिल बचस अथस मज थवान, तो इल्मी जिंदगी हुंद आगाज करान अमी पे। बिल्कुल। हरीबा जी, हमें बताइएगा, आपके कोर्स के हवाले से ही मैं जानना चाहूँगी, क्या कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ अलग अलग सेक्शंस होते हैं क्या इसमें? जी बिल्कुल, इसमें आपका हेयर सेक्शन अलग आ जाता है, आपका ब्यूटी सेक्शन अलग आ जाता है, आपका मेकअप सेक्शन अलग आ जाता है, और आपका नेल सेक्शन अलग आ जाता है। तो इसमें आपको अलग अलग ट्रेनर्स आपको पढ़ाते हैं, इवन आपको बहुत सारे एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, आपको डेमोज देने पड़ते हैं, आपको एक मॉडल तैयार करनी पड़ती है, तो इट्स लाइक ए प्रॉपर स्कूल। फाइन। तो वहाँ पे आप जाके अपना जो भी स्टडीज़ है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, और इसमें मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर है, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़। बिल्कुल सही। और हरीबा जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो मेकअप का एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था कि किसी ओकेजन पे अगर जाना है तो तभी
میک اپ کرنا ہے. لیکن آج آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھیں ٹو فیل کانفیڈنٹ یو نیڈ ٹو بی اپ ٹو ڈیٹڈ, یو نیڈ ٹو گروم یور سیلف ویل. اس کے بارے میں اور بات کریں گے ناظرین, لیکن کووڈ کے حوالے سے ایک وقفہ آپ تک آیا چاہتا ہے, اس کے بعد اخبارات کی سرخیاں اور کووڈ اپڈیٹس. کورونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے کسی سے بھی مصافحہ نہ کریں. ایک دوسرے سے کم از کم 1 میٹر کی دوری برقرار رکھیں. آنکھ, ناک اور منہ کو نہ چھوئیں. کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ڈھانپے رکھیں. صابن سے بار بار ہاتھ دھوئیں اور الکحل والے سینیٹائزر کا استعمال کریں. تمباکو چبا کر تھوکنے سے باز رہیں. جس بھی سطح کو چھونا پڑے اس کی صفائی یقینی بنائیں. ویلکم بیک. گڈ مارننگ جے کے براہ راست آپ دیکھ پا رہے ہیں, آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں اپنے فون کے ذریعے, کیونکہ یوٹیوب لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی آپ ہمیں دیکھ پا رہے ہیں اور اپنے ٹی وی سیٹس کے ذریعے بھی. کووڈ اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے چلیں. اگر ہم پچھلے 24 گھنٹوں کی بات کریں تو 540 کیسز کنفرم ہوئے ہیں, جن میں سے 171 کا تعلق جو ہے جموں سے ہے اور 369 کا وادی کشمیر سے ہے. ٹوٹل کیسز جو ہے 95,325 بن رہا ہے. ریکورڈ کیسز کی بات کی جائے 629 کیسز ریکور ہو چکے ہیں. 211 کا تعلق جموں سے ہے اور 418 کا تعلق وادی کشمیر سے ہے. اور اب اپڈیٹس تو ہم نے آپ تک پہنچائی. اپڈیٹس کے بعد آپ تک اخبارات کی سرخیاں بھی پہنچائیں گے. اظہر صاحب آغاز کریں گے. عمار صاحب شکریہ, میرا نام بدل خیر. اردو اخبار سے اردو اخبار اپنے صفحے اول پہ رقم تراز ہے. بائی پاس پر گاڑی روک کر پولیس کا چھاپا, 2 بھائیوں کی گرفتاری. منشیات کو اسمگل کرنے کا الزام, 300 گرام چرس ضبط کرنے کا دعویٰ. جی اردو روزنامہ میرے پاس, اسے یہ خبر لینا چاہیں گے. سری نگر میونسپل کارپوریشن کے 2 کارپوریٹروں نے عدم اعتماد کی ایک اور تحریک پیش کی. 2 نومبر کو عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹ کیا جائے گا. کارپوریشن میں سیاسی اتھل پتھل پھر شروع. اسی اخبار سے اور ایک سرخی ہے, یہ سنیے گا, بچوں کے حوالے سے ہے. اسکولی بورڈ کی طرف سے راحت کا اعلان, سلیبس میں 40% چھوٹ. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ اور اس میں سے یہ خبر, گورنمنٹ ایمنگ ایٹ بولسٹرنگ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف JNK, فول پروف اسٹریٹجک پلان فار گروتھ آف JK's ٹورزم سیکٹر آن اینول, لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا. جی اردو روزنامہ میرے پاس, اس سے یہ خبر, انتظامیہ اسمارٹ میٹر کی تلوار لے کر نکل پڑی. بجلی کی طلب اور کھپت میں 750 میگا واٹ کی تفاوت کون دور کرے. وادی میں 2100 میگا واٹ کی طلب, 1350 میگا واٹ دستیاب. کٹوتی شیڈول مرتب کرنے کا عمل شروع. جی یہ ایک بہت ہی اہم خبر ہے بجلی کے حوالے سے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کٹوتی شروع ہو گئی ہے جو آگے آنے والے سردی کے ایام ہیں. جی ہمیں امید ہے کہ جو یہ سارے حکام ہیں وہ کچھ ایک ایسا اسٹریٹجک پلان ڈیوائز کریں, بنائیں, تاکہ بجلی کی عدم دستیابی نہ ہو, بجلی کی سپلائی جو ہے ہمیں فراہم رہے. ایک اور خبر ایک اردو روزنامے سے, لیفٹنٹ گورنر کے لیے 3 نئے مشیروں کی تقرری کا فیصلہ. جموں میں دربار دفاتر کھلنے کے بعد اعلان متوقع. کووڈ کے حوالے سے یہ خبر, آیورویدا انٹرونشنز کین بی افیکٹو ان ٹریٹمنٹ آف مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز آف کووڈ-19, AIIA. جی ناظرین, یہ تو تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں. آج 2 مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. حریبہ چودھری صاحبہ جو ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں, کاسمیٹولوجسٹ ہیں, اور میری دائیں جانب منظور احمد الہی صاحب جو کہ پینسل یونٹ ہولڈر ہیں. حریبہ جی, تو ہمیں بتائیں کہ آج جو یہ ریڈیفائن ہو گیا ہے دا کانسیپٹ آف میک اپ, دا کانسیپٹ آف گرومنگ, تو آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی چینج آ گئی ہے اس ذہنیت میں, جو پہلے ہم سوچتے تھے کہ میک اپ جو ہے خاص اسپیشل اوکیزنس کے لیے ہوتا ہے, آج کیا مطلب, آج کیا ڈیفینیشن ہے میک اپ؟ بیسکلی پہلے لوگ ٹیکنیکلی اس چیز کو نہیں جانتے تھے, لائک ان کے پاس یہ نالج نہیں تھی اگر یہ کوئی چیز ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے. دے یوزڈ کہ اس کے فیس پہ بھی یہی لگ رہا ہے تو سیم وہی میں اپنے فیس پہ بھی لگا لوں تو آئی ول لک گڈ, بٹ دس از ناٹ the real truth. Real truth is کہ آپ ہر کسی فیس کے لیے, ہر کسی اسکن کے لیے اپنا
जो भी प्रोडक्ट है वो बना हुआ है. तो अगर आप हर किसी चीज को अपने सही फेस पे लगाए तो यू कैन लाइक एनहांस योर ब्यूटी. और हर किसी, मैं समझती हूँ कि हर कोई अपनी जगह बहुत खूबसूरत होता है, तो लेकिन अब ये है कि उसकी खूबसूरती को निखारना पड़ता है. दैट इज हम वो मेकअप से कर सकते हैं, या किसी की फेस पे कोई प्रॉब्लम है हम उसको क्योर करके उसकी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं. तो आज ये जो टेक्नोलॉजी और नॉलेज बेसिकली पढ़ाया जाता है हमें इस चीज के बारे में, तो उसने बहुत मदद करी है. और इंशाल्लाह आगे लोगों का और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में जानने लगेंगे. बहुत अवेयरनेस की बहुत जरूरत है. बिल्कुल. मंजूर साहब, तोह निश यस बह येतन जानन, तोह कोरु पन्ने खतर ते रोजगार जनरेट, सत दितु ते बाकियन ते रोजगार यम तोह सत नफर छ. अस वनतो कत्या नफर छ विंकन तोह सत, तो क्या मजीद प्लान्स छ कि यूनिट बढ़ावनुक, बे क्या नफर एक्सटेंड करनु? जी एक्सटेंड गछि असल पो अस बुथि डिमांड तत वारिया डिमांड छ. बेसिकली बे छुस बे एप्रिशिएट करा अस डिप्टी कमिश्नर पुलवामा यम किस बेसिकली ये थोड़ा ये गई हाईलाइट एक्टिविटी. मतलब वारिया डिमांड त छ वंकस त बे यवान. तो बे छ मे वन अब मसला छ बड़े आराम से अस के इशू अत मज. क्या मतलब इशू छ मे याद अकि वक्त मतलब ये मे तुह सह टेलीकास्ट कर बुतरात तथ मज जमींदार जमीन ज़राअत सोन कुल यह जिंदगी हूँ जरूरत यह कुल यह कुल अत फ्रेस्तस मुतलिक यथ गो पत्म लट गवर्नमेंट अम सत बेमार मतलब ये कि जन मतलब तुह वो गाँवन मज कत्या जायन फ्रेस लगित कह पे बेमार वह गो इन्फेक्शन एलर्जी अत मज वैरायटी अत कोर गवर्नमेंटन पत्म लट डिसाइड अत ज वैरायटी मेल फीमेल मोन अस लगन दोशवे आइटम. अगर वह अम खतर यह जानकारी गई कि मार्च अप्रैल में सीजन लगान यह लकुट बोट यह अकिस जमींदारस यह समझ यह मेल कि फीमेल अम खतर अगर प्रोग्राम बनाओ इन वनान नसा यह मेल लागुन कि फीमेल लागुन तो यम करान सो इंट्रोड्यूस बे वुचु तुम बे सारे खुद फ्लड एरिया अस कूत जमीन दरियाव बंडन बंडन अमिच मतलब पतिम अगर 2-5 वरी तुम वो गवर्नमेंट सारे खुद ज्यादा रेवन्यू अमुक आमुत बे मान हिसाब 70% लुक अथ रिलेटेड वह फ्रूट बॉक्सेस पॉपुलर वुड या प्लाईवुड इंडस्ट्रीज वीनियर या प्लाईवुड अथ सत रिलेटेड पॉपुलर लगान सन पेंसिल पॉपुलर लगान लकर छतन लगान ये मतलब छत बना मकान जरूरी यह पॉपुलर अम सत बचो गवर्नमेंटस जंगल मतलब फॉरेस्ट बचो सोरे यह गो यूज अथ पे अगर गवर्नमेंट ध्यान दिया मतलब सड़क तुम पत्म कुछ सात गमी संगम तथ ग्रीन टन कूचा खूबसूरत कुल ऑक्सीजन खतर को जरूरत बे चीज अकि लट लगो ये पे न खाद न आब अत शीन पेतन यह वेठ रूद पेतन यह वेठ सहलाब खसनस तेल वेठ यह तुथ मतलब वन चूंटिस पे ज्यादा ध्यान दवा तीस मेहनत कर चूंट वोल वदन हेवान है स्केप रेट पत्थर गिरान गो डोट पे तो यह गो खत्म फल मकले फ्रस्तस सो आइटम बे ब्या बोड़ चीज वन तुम वुचान गाँवन मज मतलब मे पन्निस गाँवन साइड पता कह लास्टस मतलब कंस फादर या मदर बड़ तम पे कुल 4 रटान पानस पे क्या तिम पाई अस न खाद छकन न खनुन अन न कह कर यह बढ़ान अति सह वथान लास्टस ग 5 वुर 6 वुर चटन वि सोजान कंस यह हेक अहन यह हेत मे यह गो यीतिस तो अमिस अम सात अत लागुन कहें मान हिसाब 60 to 70% लुक अथ रिलेटेड वो कर हिसाब मे लगभग 4-5 मतलब 3-4 डिस्ट्रिक्टों पर ये लकर गांधरबल मतलब बारामूला कपवारा पुलवामा अनंतनाग तुम वो पे तिहुन ट्रांसपोर्टेशन तथ तम चटन वल अम पे यह बई योत अम पे प्लाईवुड इंडस्ट्रीज सो सारी अथ पे डिपेंड कर अत कर वन अपील गवर्नमेंटस अम खतर तह बन तो ये बनावन सह बतरात प्रोग्राम यम समझो लूक इन वन तो यह फ्रेश मतलब बे रसरावन यह छान तो नौ त लागुन
वो इंशाल्लाह मे उम्मीद मे बासान गस मा क्या थोड़ा गो ये नेबर नेबर ये थोड़ा हाईलाइट ये फ्रेश क्या बेसिकली आम लुकन पाई क्या ये पेंसिल वुचान सत रंग आसान अंदर वजोल सह गरान तिमन पाई आसान ये खबर क्या लकरा सारी टॉप पेंसिल सारी खोत यूज फ्रेश बनान अप्सरा प्लेटिनम हिंदुस्तान पेंसिल नटराज पेंसिल डोम्स पेंसिल मतलब वर्ल्डस मज यथ कंपनी बह वनकस सप्लाई करान ये करान वनकस वर्ल्डस 7 मुल्कन सप्लाई 1.25 करोड़ इनका प्रोडक्शन है दिन का एक दिन का पेंसिल ये सोरी फ्रेश सही तुहद यम इशूज यम तुम रेज करियो यम जेन्युइन कंसर्न अत मुतलिक अगर गौर यी करने बेस लुक अवेयर इन करने कि अमि कूता एक्सपोर्ट बढ़ान कत्या सन चीज लुकन ऑलरेडी पाई मगर वो गवर्नमेंटस पे खोजान गवर्नमेंटन वो नसा अमि गई बेमारी मगर छन बेमारी कहें वनकस तस प्रॉपर्टी यह सानो मतलब बड़ बाबो रोमस मे याद 10 पोसन सोशल फॉरेस्ट्री फ्री दिवान कुल जार पार कर रुई तो पे कुन जमीन मतलब वन बेकार जमीन से लगोमुत असली जमीन गो तुम पंजाब तक खेती बाड़ी पे दान कर पंजाब अमिच खेती बाड़ी चलान बड़ हिसाब मज अगर तीस मेहनत ये करो मे बासान मुजरई खैर ऊंट अलग चीज अलग हर कुछ चीज बहावनी रेतन रेत कोल अमिच डिमांड मतलब यह दिल्ली पंजाब तमाम स्टेटन अमिक वीनियर गसान सही सही बिल्कुल अत मज पोटेंशियल बड़ इंडस्ट्री अत पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेट बिल्कुल अवेयरनेस की बात हो रही है। हरीबा जानना चाहेंगे आपसे, कश्मीर में अवेयरनेस जरा कम है। छोटी सी बात की जाए, अगर किसी को चेहरे पे पिंपल आ जाता है, दाग रोजान पता तमिस लुक वनान आप डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, कुछ लोग कहते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, हालांकि ये कॉन्सेप्ट कम। तो ये अवेयरनेस के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए और क्या लगता है आपको लोग कितने बेदार हैं? बेसिकली अवेयरनेस तो पहले कम थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तब से मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हुई है लोगों में। वो जानने लगे हैं कि इवन आज सोशल मीडिया पे क्या कुछ नहीं होता, आपको हर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप एक क्लिक करें और आपको हर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जहाँ पे आप बात करते हैं एक पिंपल की, एज कॉस्मेटोलॉजिस्ट हम उसको कर सकते हैं कवर, बट अगर वो ज्यादा डेप्थ में है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वी कैन कवर, बट अगर उससे ज्यादा है तो उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर दैट इट कम्स इन द सर्जरी सेक्शन। तो दिस इज बिल्कुल, और वहाँ पे फिर एक मेडिकल इंटरवेंशन आ जाता है कि कोई मेडिकल प्रोसीजर, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से ये पिंपल हो रहे हैं या फिर कोई एलर्जी हो रही है। हरीबा, कॉमन जो प्रॉब्लम्स आजकल परसिस्ट कर रही हैं वो एक तो हेयर के रिलेटेड है, हेयर फॉल होता है, और स्किन के रिलेटेड के एलर्जीज होती हैं, स्किन इरिटेटेड रहता है। तो क्या इसका अमल दखल हमारे डाइट के साथ भी है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो कुछ हम खाते हैं उसका भी बराह रास्त असर इन चीज़ों पे पड़ता है? डाइट तो काफ़ी चेंज हो गया यहाँ के लोगों का, प्लस क्लाइमेट का भी बहुत इफेक्ट है, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्ट्रेस। अगर हम हेयर फॉल की बात करें, जो कि आप बालों की बात कर रहे हैं, तो 50% ऑफ योर हेयर फॉल इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से हमारा काफ़ी हेयर फॉल होता है, स्ट्रेस की वजह से हमारे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, जिनको हम फर्स्ट ग्रेड ऑफ एक्ने बोल सकते हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड पिंपल्स, नॉर्मल पिंपल्स फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड ऑफ पिंपल्स में आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी। और आजकल लोग इतने बिजी हो गए, ना पानी पीने का टाइम है, ना प्रॉपर खाने का टाइम है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हम अब मुझे लगता है आगे आगे ज्यादा देखने को मिलेंगी। जी, अमार साहब ने हेयर फॉल का जिक्र किया, मैं हेयर ग्रेइंग का जिक्र करना चाहूंगी, वो भी इसी वजह से होता है? जी, वो मेलानिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, जब हम प्रॉपर डाइट ना ले पाए तो मेलानिन की कमी हो जाती है। तो ये जो व्हाइटनेस, ब्लैकनेस भी हमारे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है फेस में, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर डाइट। और जो आजकल का क्लाइमेट है, जो कि बहुत ज्यादा हम ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, तो हम सनस्क्रीन यूज नहीं करते, जबकि हमें SPF 50 ऑलमोस्ट 40 to 50 हमें यूज करना चाहिए ट्वाइस इन अ डे, ताकि हमारा जो फेस है वो प्रोटेक्टेड रहे जो भी UV रेज आती है, तो वो हम नहीं कर पाते, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। बिल्कुल सही। और मंजूर से वहीमो तो वन कि तुम दपू पेंसिल अथस मज रटान, बासान यह वजुल, यह पाई यह कत बनो, यह बनान कित कन, क्या प्रोसीजर, तो थोड़ा बहुत समझे तो। बनावान पेंसिल स्लेट, स्लेट पत मतलब
यम छ पत ब्रोट गसान कंपनी मस तिम छ तत पत ग्रू करान अच्छा नाली हिश ठीक अकिस सनिस सिलेटस छ जरलावन यथ पट तत छ 8 पेंसिल बनान अच्छा अकिस सिलेटस यदि पान में रलाव आख सिलेट छ तल ब्याक सिलेट रटो पत छ गसान बुथि मशीन मस गोड छ पेवन केमिकल वार ये वोजुली कलर छ गसान आज पेवन केमिकल गोड करन गोड छ पेवन ये हकनावन पत छ पेवन बे तिमन उदरावन पत छ बे हकनावन अच्छा वारिया प्रोसेस पत पे ग्रू कड़ान तम त्रावान पे लड मज तो तम पे मशीन मज तम पे पेंसिल षटान अच्छा ये मशीन चलावान कम अम खतर ये नौजवान पेंसिल मे पूर बनावान अच्छा तु सिर्फ स्लेट बोड़ प्रोजेक्ट मतलब अत पे सोचान बहुत ओतर पे मे थोड़ा ये बासो ये गो थोड़ा ओपन बहुत सोचान ये मगर मसल अत पे यो रॉ मटीरियल खतर मतलब मतलब प्रोजेक्ट बोड़ इंसान कर तेल इन्वेस्टमेंट क्या मतलब बैंक से हे लोन कर मतलब अत फ्यूचर फ्यूचर रॉ मटीरियल की अगर अत पे गवर्नमेंट ध्यान दी मतलब लुकन मज समझ आये मतलब कुस कुल रुवन कुस रुवन रोहियो तुम बेमार वाली कुल ना बिल्कुल बे यथ पे तथ लगान 10 वरी तैयार गसनस मतलब वनकस नो नो टेक्नोलॉजी यह गोस 5 वरियन मज यून तो अगर ये बड़ इंडस्ट्रीज इंडिया मज फ्रेस बनानी कुछ जाए बनान फ्रेस मगर सह हार्ड जैसे पंजाब में होशियारपुर वारियान जायन गो तत फ्रेस आसान मगर सह हार्ड इस सोन फ्रेस मॉइस्चर आब वाटर यह मॉइस्चर यो लगान यूत सॉफ्ट तूत बिल्कुल तुम पूर प्रोसेस मतलब पूर पेंसिल बनायो तेल तथ खतर तुम मशीनरी बे अन स्किल्ड लेबर अन सो मशीनरी हेकि चलाय मगर इस थो उम्मीद कि तुम वनुक ताय करो छरसी पेट के बहबूद ये इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट मगर तोपत करो तुम ये कोशिश ब्रोह दी अल्लाह ताला बे क्या वन तिमन तह मनसूब सह दी तुम बे तार बे करियो तुम मशीन अनियो बे करियो यूनिट पन इंशाल्लाह इंशाल्लाह जानन यसो तह निश हरीबा अगर बह गलत छस बह हेके मे सही करित मे छुन बासान कि कशीर मज कह एकेडमी ये प्रॉपर ट्रेनिंग दिवान अमि चीज अस वनतो कि तुह कोरू नेबर पे अपने जो है फॉर्मल ट्रेनिंग इसकी ली है लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करें क्या कुछ कर रहे हैं आप कि जो आपको फॉलो करने वाले लोग हैं आगे जो हमें बच्चे देख पा रहे हैं या जो पसंद करता है इस फील्ड में आना उनके लिए आप कौन से वसाइल यहाँ पे जनरेट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो मेरा कोर्स था इसमें हमारा एक इंटर्नशिप होता है। जब आप वो कंप्लीट करते हैं तो आपको एक लाइसेंस मिलती है, आप अपनी एकेडमी खोल सकते हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो वो कोर्स खत्म कर चुकी हूँ मैं नाउ बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक हम कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। बट मेरा आगे प्रोग्राम ये है कि मैं अब यहाँ की लड़कियों को ट्रेन करना चाहती हूँ। जो भी मैंने बाहर से तालीम हासिल की है उसको मैं अब यहाँ यूटिलाइज करना चाहती हूँ। जितना भी मेरा जो भी इसका फी वगैरह स्ट्रक्चर है, आई नो द सिचुएशन गोइंग ऑन हियर, तो उतना मैं चार्ज नहीं करूंगी। इवन अभी भी मैं काफी लड़कियों को फ्री ट्रेन कर रही हूँ इस चीज के लिए जो नीडी है। बिल्कुल, तो इट्स नॉट लाइक कि आप फाइनेंशियली लोगों को हेल्प करें, उसी को हेल्प बोलते हैं। आप वो सर्विस दे के भी हेल्प कर सकते हैं, आप बाकी चीजें भी उनमें वो आर्ट क्राफ्ट कल को खुद अपने लिए कुछ। और मेन इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, जब तक आपका किसी चीज में इंटरेस्ट ना हो तो वो जबरदस्ती बोला जाता है। और मेरा मतलब जो भी यूथ है उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, बस गो फॉर दैट। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप कभी अपने बच्चों को ना रोके कुछ भी करने। बिल्कुल, कुछ भी उनकी जो भी मेंटालिटी है, जो भी वो सोचते हैं, उनके साथ बैठ के वो डिस्कस करें। बिल्कुल, ताकि वो मतलब क्योंकि फैमिली बिकॉज ऑफ फैमिली के सपोर्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हकीकत है, और वो बहुत जरूरी अक्सर ये होता है हरीबा कि जब हम पेरेंट्स के साथ हमें डिस्कस करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए। कुछ लोग जरा रेबल बन जाते हैं कि नहीं हमें यही करना है तो यही करना है। बट जो वालिदैन होते हैं वो फिक्रमंद होते हैं अपनी औलाद के लिए। उनको भी नहीं चाहिए फैसला थोपना किसी अपने औलाद पे, लेकिन औलाद को भी चाहिए कि जो उनके इंटरेस्ट है वो उनको कन्विंस करे कि ऐसा फलां फील्ड है, उसमें ये ऑप्शन है, ये करियर, ये बैठ के सॉर्ट आउट हो सकता है। हरीबा, एक और पहलू जो आपकी शख्सियत का है वो ये है कि आपने एक बॉलीवुड प्रोजेक्ट, एक बॉलीवुड एल्बम में भी बतौर एक्ट्रेस काम किया है, तो उस बारे में हमें बताएं वो जर्नी किस तरह। हाँ, एक्ट्रेस बेसिकली उन्होंने एक एल्बम बनाया था,
تو اس میں ایز میں میک اپ آرٹسٹ کام کر رہی تھی, تو انہوں نے مجھے آفر کیا تھا کہ آپ اس البم میں آئیں, بٹ جسٹ بیکاز کہ مجھے آئی بلانگ ٹو اے مسلم فیملی, تو آئی کانٹ جو وہاں کا پیٹرن تھا وہ میں اڈاپٹ نہیں کر سکتی تھی. تو پھر بھی میں اس میں ایک جگہ تو ہوں, کلپ انہوں نے وہ زبردستی لے لیا میرا, بٹ ایز اے میک اپ آرٹسٹ آئی ہیو ورک ان البمس. اور ہمارے جو لیکمی اکیڈمی میں فیشن شوز ہوتے تھے, آئی ہیو ورکڈ ان دیٹ آلسو, کیونکہ کیا ہوتا تھا اس اکیڈمی میں جو بھی بچے ہوتے تھے لائک جن کو ہر کوئی آرٹ آتا تھا, تو ان کو سلیکٹ کیا جاتا تھا, اور پھر لیکمی اکیڈمی کا جو فیشن شو ہوتا تھا جس میں ایکٹریسز ہوتی تھی, ایکٹر ہوتے تھے, تو ان کا ہمیں میک اپ کرنے کا موقع ملتا تھا, اور وہ بھی ہمارے مجھے لگتا ہے ہمارے پروفیشن کے لیے ایک بہت ہی پلس پوائنٹ تھا. بالکل, تو اس میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا. بہت خوب, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. منظور صاحب, چونکہ کورونا وائرس پینڈمک یم سی ون تہ متاثر, ات مز کام کار برو کن پکناون یہ واریاہ مشکل, کیازکہ لیبر اوس نہ بنان, واریاہ کانسٹینٹس ٲسۍ, أکِس انڈسٹری چلاون وٲلِس گوٚو واریاہ مشکلات اتھ مز. اتھ متعلق ؤنۍتو أسۍ کہِ پینڈمکس مز کیُتھ چلیو تُہُنٛد یہِ پینڈمکس مز پرابلم بیسکلی یوتام سکول گژھن یلہٕ توتام پرابلم, کیازِ یم گٔے ورلڈس سکول بند, یہ گوٚو نہٕ مطلب أکسٕے جایہِ سکول باقٕے سایڈ, یہِ گوٚو ورلڈس. ڈِمانڈ تہِ گٔے کم, واریاہ کم, مطلب 10% چھُ چلان, سُہ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ چلان. تتھ منٛز ٲسۍ لیبر کینٛہہ مطلب لوکل ٲسۍ, مطلب آوُٹ باقین سٹیٹن ہٕنٛدۍ ٲسۍ مےٚ تقریٖباً لیبر 60-90, تہٕ مےٚ کٔرۍ تِم مینیج تِمن خٲطرٕ کھٮ۪ن وٮ۪ن. چلو لوکل ٲسۍ, یِم ٲسۍ گرے گژھان, یِم ٲسۍ گرِ بیہان, تہٕ یِمن اوس چلان. ہُمن پیوٚو کھٮ۪ن کَرُن مینیج, کوٚر مطلب سورُے فیسلٹی کٔرٕن مینیج, تہٕ پیوٚو تھوڑا تھوڑا وۄنۍ تھاوٕنۍ پتہٕ یِم ییٚتٮ۪تھ ٲسۍ مطلب 10% تھوٚو پروڈکشن, تہٕ روٗدۍ تھوڑا یِم اینگیج أتھۍ سۭتی. تہٕ وۄنۍ چھِ انشاءاللہ اُمید یُتھُے سکوٗل کھُلن تہٕ اَسہِ سٲنۍ کٲم اصل 100%. تمہِ ساتہٕ چھنہٕ پتہٕ فرصت آسان کینٛہہ, پتہٕ چھُ پتہٕ چھِ أسۍ پانس تامتھ کوٗت ہٮ۪کو کٔرِتھ. صحیح, بالکل. حریبہ, سوشل میڈیا بہت ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا اچھا استعمال ہو رہا ہے. ہمیں بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے کاسمیٹولوجسٹ, کشمیر میں اس پروفیشن کا فیوچر کیا ہے, کتنا لوگ پسند کرتے ہیں اس کو, خاص طور پہ ینگ جنریشن؟ بیسکلی یہ سب کچھ ابھی ینگ جنریشن کے لیے ہی ہو رہا ہے. ابھی جتنے فیلڈس آئیں گے ینگ جنریشن اپنا اپنا فیلڈ چوز کر سکتے ہیں. یہ صرف ایک فیلڈ نہیں ہے, ایسے بہت سارے فیلڈس ہیں. اب یہ بیسکلی انٹرسٹ پہ ڈپینڈ ہے, اور سوشل میڈیا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے, کیونکہ آج کل لوگ اتنا ٹی وی نہیں دیکھتے جتنا کہ لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو انسٹاگرام, فیس بک, دیز آر دا مین تھنگس جہاں پہ آپ کو آج تو لائک یو ہیو ٹو سیل دا پراپرٹی اینڈ یو کین جسٹ کلک آن دا انٹرنیٹ, اور آپ وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا بہت ایک امپورٹنٹ, اور آج کل سب کے پاس اینڈرائڈ فونس ہے, تو ایوری ون کین یوز دیٹ. تو آپ جو یہاں کی سکسیس ہے وہ زیادہ دور نہیں. بالکل صحیح. حریبہ, آپ کی اسٹوڈیو میں موجودگی کا ہم فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ ناظمہ بھی جانتی ہے کہ ہم ونٹر کے ایام کے اور چل رہے ہیں, جس میں عام شکایت جو لوگوں کو ہوتی ہے کہ اسکن ڈرائی ہو گیا, بال ڈرائی ہو گیا. تو کچھ کوئک ٹپس جو ڈیلی روٹین میں ہم شامل کریں, ان کو عمل میں لا کر ہم وی کین ہیو گڈ موئسچرائزڈ اسکن. اینڈ بیسکلی ونٹرس میں کیا ہوتا ہے, آپ کی جو اسکن میں آئل اور واٹر کنٹینٹ ہے وہ زیادہ لو ہو جاتی ہے, تو اس لیے آپ بہت زیادہ پانی پیے, اور ہمیشہ آئل بیسڈ موئسچرائزر. رات کو نائٹ کریمز کافی زیادہ آئی ہے, میں کسی اسپیسیفک کا نام نہیں لوں گی, بٹ جس میں آئل کنٹینٹ زیادہ ہو یو کین یوز دیٹ ایٹ نائٹ. اور دن میں آپ سنسکرین یوز کر رہے ہیں, کیونکہ کیا ہوتا ہے یوزولی لوگ بولتے ہیں ونٹرس ہے تو ہم سنسکرین یوز نہیں کریں گے. ایون دا لائٹس ان یور ہوم, ان یور روم, وہ بھی آپ کے فیس کو افیکٹ کر سکتی ہے. تو اس لیے آپ کو گھر بیٹھے بھی سنسکرین یوز کرنا ہے, اور وہ موئسچرائزر اگر اس میں پلس آئل کنٹینٹ زیادہ ہو تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا آپ کے لیے. ہو گیا اسکن. ہیئر کے لیے یو کین ڈو ایز آئلنگ. بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسکیلپ میں پرابلم ہے ہیئر میں, اور یو ہیو دا لینتھ پرابلم, تو یہ اس چیز پہ نربھر ہے. اور اگر آپ کی ہیریڈیٹی ہے کسی چیز میں ہیئر, تو ایون ڈرماٹولوجسٹ کانٹ ہیلپ. صحیح. پروگرام کے آخری مراحل میں ہیں ہم. منظور صاحب, تم نوجوان تہ آسن تُہۍ وٕنکٮ۪ن وٕچھان یم پننٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھڑا آسن یژھان گژھُن, مگر سۄ جھجک آسٮ۪کھ, ہیزیٹنسی آسٮ۪کھ, تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ پیغام آسہِ تُہُنٛد؟
बेसिकली दिमागस मज डर थवन कह काम करने द्राव मगर मे वो गोडनेथ आद बेसिकली फैमिली सपोर्ट फैमिली सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली सपोर्ट अख नौ नेर कह बिजनेस कर अमिस गछ पत्कि सपोर्ट आसन फैमिली हूँ तेले हेकि ब्रोट कुन पकित बेयु गोडनेथ सारी खुद पान वुचन काम मतलब ये कि मजूर कर्म पान त मतलब बहुत वनकस पान त या ब्रदर फादर वंदस मतलब गो आव दिमागस मज पूर ये मतलब मतलब तुम वुचान गोर सद पे कन पे थवन ना योकुन वुचान ना योकुन बहुत पे काम कुन वुचान मे जन वन तम वनकस कह फ्रेंड बदल कह बह कर बहुत यथ सद दिमाग बह कर यह अगर बहुत यसान यह पकना बे ब्रो मतलब अत मज क्या सारी खुद क्या खुद मे अत मज पसंद अत लेबर लगान रोजगार अत मज अव कि अत एक्टिविटी ज्यादा कोश बह अगर मे पानस कम बन अगर मे मतलब पानस रोपियस 500-1000 काम दह बन दोस एक्टिविटी अत रोजगार वसा लड़की अत मज लगान तम ति लड़की मे नश बिचार यम जन यतीम कह गर बेमार तम पाने मतलब अस नश सुबह 9 बजे 5 बजे नेरान वारिया लड़की और तिथ ति लड़के मे नश अड़ ग्रेजुएशन कर MA कर पारान तम तरान मे नश मे वन ये पे एग्जाम नीर थो 10 दिन 15 दिन छुट्टी तव कि मे ज्यादा खुश पन एक्टिविटी बिल्कुल सही तुम वो यह असल पैगाम पन्ने काम अंज मज गुतल जान हासिल करें पत अथ वत पे रोजन ब्रो कुन पकान मुख्तसरन हरीमा आप भी हमें बताइएगा क्या पैगाम है यंगस्टर्स के लिए मुख्तसरन यंगस्टर्स के लिए ये पैगाम जो मैंने आपसे पहले भी बोला जिस फील्ड में वो जाना चाहे जा सकते हैं रुकना नहीं है कहीं पे भी रुकना नहीं है फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट जब मुझे फैमिली सपोर्ट था तभी मैं आगे कुछ कर पाई वरना दिमाग में वो एक चीज़ रहती है कि अगर मैं फेल हुई तो पता नहीं मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे तो ये दिमाग में होना चाहिए कि पेरेंट्स का सपोर्ट ऐसा है हमें कि अगर हम फेल भी हुए स्टिल दे आर विद अस बिल्कुल बिल्कुल तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बहुत बहुत शुक्रिया एक ट्रस्ट डेवलप हो जाना चाहिए ताकि अगर हम फेल भी हुए हमें एक मोटिवेशन मिले लोग हमारे पीछे हों जो हमें सपोर्ट करें ताकि हम फिर से उभर के खड़े हो जाएं और आगे बढ़ते चलें। नाज़रीन आप पहले तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और अपने जो फील्ड्स हैं उनके हवाले से हमें जानकारी देने के लिए। हमें उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये कोशिश पसंद आई होगी और यही है ना कि अगर सर में सौदा हो दिमाग में एक फोकस हो एक टारगेट हम बनाएं तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आज आप हमारे साथ बने रहे हमें उम्मीद है कि आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। आप तक और भी मेहमानों को हम आपकी मुलाकात कराएंगे उनसे और शुमारे पहुंचाते रहेंगे लेकिन आपसे आखिर में यही गुजारिश करेंगे कि प्रोटोकॉल्स एडवाइजरीज को फॉलो करें। कोविड-19 का पैंडमिक इस वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ है खतरा अभी बरकरार है और जो एक और अनाउंसमेंट हमने आगाज़ में भी की थी उसको फिर से दोहराते हैं कि हेलो DD प्रोग्राम आज 5 बजे से लेकर 6 बजे तक एक लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम नश्र होगा जिसमें डॉक्टर एजाज अहमद हकाक साहब जो जॉइंट डायरेक्टरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो बतौर मेहमान तशरीफ़ फरमा होंगे। आप अपनी क्वायरीज अपनी डाउट्स पुट फोर्थ कर सकते हैं उनका जवाब हासिल कर सकते हैं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए और देखते रहिए प्रोग्राम 8 बजे से 9 बजे तक अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK।